Okay. So today we are starting the week 3 of the 21 days challenge, wherein we are going to talk about the setting goals and future planning for the teenagers. It is very much important. So the first thing is today is like we are talking about the goal setting and the time management for them. And we have few other topics like in it I will be covering decision making and problem solving skills. And the next is dealing with academic pressure, then exploring career interest and passions, understanding responsibility and independence, celebrating growth and achievements. ये हम लोग इस वीक में कवर करेंगे या फिर थर्ड वीक में हमारा ये सब डिपेंड होता है. Yeah. Now, for example, helping teens to understand a structured approach to setting the goals and managing the time effectively is very much important. That's the reason we have selected this topic in this week. The goal is to help them organized, focused, and motivated while balancing the academic pressure, extracurricular activities, and personal growth. बच्चे इसमें कोई बच्चे क्या होता है गोल सेटिंग नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता है. जस्ट एज द टाइम कम्स दे विल एंजॉय द थिंग. संडे है तो एंजॉय कर लो, मंडे है तो ये कर लो, मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर माइंड. बट वी नीड टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स. वी शुड हेल्प देम टू ऑर्गेनाइज, focused and motivated, and they can continue with the academics, extracurricular activities, and personal growth. So that's the reason we have included this. You can cover in the summer camp by doing the following activities, like engaging activities and learning, making them understand. So first of all, you can, ma'am, you are much having the knowledge on all these things. So you can add few points, okay? I'm not going to give the much introduction on this because you know very well, like setting goals and what is. So first of all, we should plan a goal setting workshop for them. For example, teens, if we ask the teenagers, what is your goal? सब लोग पहले क्या बोलते हैं? I want to be successful. I want to do better in the school. But you know, right? As an educator, the goal should be always SMART. SMART. It should be specific, measurable, achievable, relevant, time bound. ये सब थोड़ा बच्चों का आप एक एक भाषा में समझा देना कि मतलब बेटा गोल ऐसे नहीं होता है, गोल कैसे होता है, स्मार्ट होते हैं. तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना, उसके हिसाब से आप उनको एक्टिविटी देना, लाइक पर्सनल गोल सेटिंग वर्कशीट. तो आप उनको एक वर्कशीट बना के दीजिए एंड हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द एकेडमिक गोल, पर्सनल गोल एंड सोशल गोल. वो एक वर्कशीट दे दो. पहले आप क्या करिए, उनको एक दिन समझाइए गोल के बारे में, मतलब 10 मिनट के लिए. फिर गोल को वो लोग उनसे, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर गोल, तो दे विल टेल लाइक मैम आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मैडम आई वांट टू बी फर्स्ट इन द क्लास. इतना बोल के छोड़ देते. ओके फाइन. एंड वी विल एक्सप्लेन देम, ओके गोल इज समथिंग लाइक स्मार्ट, SMART. उसको सोच के बेटा यू हैव टू फुलफिल दिस वर्कशीट. गिव देम वर्कशीट एंड गेट इट टुमारो. थिंक एंड गो. उसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू गिव देम ब्रेक, लाइक एकेडमिक गोल, पर्सनल गोल, सोशल गोल. एंड उसको समझाओ कि एकेडमिक में क्या होता है, पर्सनल में कैसे होता है, सबका एक एक गोल लिख के लाओ करके बोलो. एंड आप भी अपना क्या करिए, आप भी बताइए कि फॉर एग्जांपल यू आर एजुकेटर, यू आर ए समर कैंप फैसिलिटेटर हियर, सो व्हाट यू थॉट व्हेन यू थॉट, ऐसा बोल के आप कुछ भी एक्सप्लेन करके छोड़ दो. तो नेक्स्ट डे दे विल गेट यू द शीट एंड इन दैट वे यू आर हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ गोल, स्मार्ट, एंड कैसे बनाना गोल सेटिंग कैसे करना. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डे क्या करो, when you give them time for 2 days or 1 day to fill this sheet, next day what you have to do, you have to pair them in the team. Pairing करो and pair करने के बाद ask them to share the goals. तो अभी हम दोनों टीम है. For example, I am giving my sheet to you. So now you are supposed to, you are authorized to measure this goal. Means ये goal सही लिखी क्या नहीं लिखी मैं. आपने मुझे होमवर्क दिया, my teacher has given the homework. Now she has made us one team. So I am passing my goal to you. You pass my goal sheet to me. Then we have to evaluate. Oh, मैडम ने तो बोला था कि SMART होना चाहिए, तो दीपिका ने सही लिखा. मैं देखो, आप देखोगे नीलोफर ने सही लिखा. In this way we are making them understand more and evaluating. Help them to understand what is the goal, refining. ये एक्टिविटी आप अच्छे से कराइए. Next, second activity like time management games and challenges. टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल स्किल. बिकॉज टीनेजर्स क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना है, ये एक एक्टिविटीज को यहाँ पे करवाना है. क्यों करवा रहे हैं हम लोग, टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रायोरिटी वाइज टास्क को कैसे सेट करना है और कैसे तो टाइम यूजफुल करना है. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम जार एक्टिविटी. टाइम जार एक्सरसाइज. ओके, हाँ, ये इंटरनेट में भी मिल जाता है आपको. टाइम जार एक्सरसाइज में क्या होता है,
display glass jar and provide big rocks, pebbles, sand. तो टीनेजर्स को देना है आपको, एक प्लास्टिक का भी दे सकते हैं, आपके पास अगर जार नहीं है तो ऐसा जार नहीं है तो कुछ प्लास्टिक के ग्लासेस, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, एंड ये एक्टिविटी करवाइए. आस्क देम टू फर्स्ट पुट द सैंड, देन रॉक्स. इफ दे पुट सैंड रॉक्स, एक्सप्लेन देम कि बिग रॉक्स जो है ये आपका लाइफ में इंपॉर्टेंट टास्क है, जैसे कि स्टडिंग करना, सेल्फ केयर करना, फैमिली, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पहले रॉक्स को फर्स्ट रखेंगे. तो बच्चे लोग क्या करेंगे, पहले सैंड को भरेंगे. दे विल हम लोग ऐसे ही करते हैं जनरली, बच्चे लोग का माइंड क्या रहता है, अरे मम्मा मैडम ने सैंड भी दिया, रॉक भी दिया, तो जल्दी से मैं सैंड भर दूंगा, बाद में कुछ करूंगा. बट हमें उनको रिवर्स सिखाना है कि जो सैंड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रॉक्स है ना, रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. लाइक दे रिप्रेजेंट स्टडिंग, सेल्फ केयर, फैमिली. सो फर्स्ट यू ट्राई टू फिल द जार विद दैट. तो लाइफ में पहले ये काम करिए, स्टडी करिए, सेल्फ केयर करिए, फैमिली का सुनिए. फिर सेकंड, स्मॉल पेबल्स को रिफिल करो, क्योंकि दो दो बड़े पत्थर, चार पत्थर आप रख दोगे स्टडिंग का, फैमिली का, सेल्फ केयर का, 3 पत्थर उसने रख दिया बड़े बड़े, अब बीच में स्पेस रहेगा, वो स्पेस में आप छोटे छोटे पेबल्स डाल सकते हो, लेस द रॉक्स विच आर ऑफ लेसर साइज. सो दीज पेबल्स रिप्रेजेंट द सेकेंडरी टास्क, ऐसे बताना उनको. फिर उसके बाद जो अब पेबल, अब रॉक के बीच में पेबल चला गया, फिर स्टिल सम स्पेस रहता, वो स्पेस के बीच में दे कैन पुट द सैंड. Sand are the very leisure time करने वाला activities. So in this way you have to make the mindset clear कि which is first important, that has to be fit first in the jar. So in the life also, in the timetable also, the thing which is first important, that we need to finish first in this way. So schedule the things first which are very important, then after that less important. After that, if you have still room, then you have to add the fun. The fun is something like adding the sand. If they waste time on small things first, then the priority will lose for the important things. तो इसलिए हमने पहले रॉक को भरा, सैंड तो लास्ट में आएगा. सैंड इज रिप्रेजेंटिंग द लेशर टाइम. इस तरह हमें अपने बच्चों को सिखाना है उस दिन. ओके. नाउ मैम, there is one more activity which is called beat the clock. I'm writing in the chat box. Okay. जस्ट फॉर अभी के लिए, बट आप रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा. बीट द क्लॉक. ओके. क्लॉक क्या है इसमें, फॉर एग्जाम्पल वी विल गिव द टाइम सेट, टाइमर गेम, समथिंग लाइक दिस. आई एम गिविंग यू 2 minutes and I'm giving you to sort this. For example, make a chit of 10 papers. उसमें आप क्या लिखो, A से लेके J तक वर्ड्स लिख के आपने फोल्ड करके रख दिया. गिविंग टू one team, make a team of 2 person. And time is only 2 minutes. They have to open, they have to read it. You are writing the words of the A to J because 10 chits, 10 chits, 2 minutes you are doing, and 2 partners. So they have to open, they have to remember aircraft, A for aircraft. So you have to ask them to arrange in the ascending order, or ask them to arrange the descending order. So in this way, they are trying to beat the clock. Means whatever time आपने दिया, वो टाइम के अंदर. अब for example, A to J is 10 words. एंड 10 चिट्स आप बना दिए. हम दोनों टीम है और मैम ने सेट किया 2 मिनट्स का क्लॉक. तो हम दोनों को ओपन करना है फटाफट, और ABCD से नहीं रखना है. वी आर मेकिंग देम टू डू फ्रॉम द J to A. J फॉर ऐसे ऐसे करके सेट करना है उनको. तो वी बोथ आर फॉलोइंग, मतलब बीइंग ए टीम वी आर फॉलोइंग द टाइम. अरे 2 मिनट्स में इतना करना है, तो इससे टीम वर्क भी आप सिखा रहे हो बच्चों को, एंड आपको आप बता रहे हो कि कैसे वी हैव टू सॉर्ट बाय बीइंग अ टीम अप, एंड वी आर फॉलोइंग द deadlines. So in this way, making the pressure, थोड़ा pressure डाल रहे, but in this way you are making them faster to work toward the deadline. Time management आप सिखा रहे हो उनको. Yeah. So these 3 activities which can help them to in the summer camp activities. Now coming to the counseling. Teenagers का problem क्या है mainly? वो लोग क्या बोलते हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं कल कर लूंगा. So we have to make them understand how to overcome the procrastinations and help them in creating the timetable. तो लास्ट मिनट करने का आदत होता है हम लोग. हम भी जब टीनेजर थे, हम भी कुछ काम ऐसा किए होंगे कि लास्ट मिनट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे ऐसे. बट अभी हमारे पास वो लोग आ रहे हैं ना, तो वी नीड टू ट्रेन देम व्हाई दे प्रोक्रास्टिनेट, हाउ टू ओवरकम देम. सबसे पहले हमें बताना है बच्चों को कि व्हाई डू सम पीपल सेट गोल्स बट नेवर अचीव देम. पूछना उनसे, तो वो लोग खुद भी बोलते हैं, हाँ मैम मैंने भी सेट किया था गोल, बट मेरा अचीव नहीं होता है बिकॉज मैं सोचता हूँ ऐसे. मतलब कुछ तो भी आप उनको डिक कर रहे हो. यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड द कॉज. यू आर सेटिंग द गोल,
First of all, he will think some people are setting, is I am setting or not? Oh, I am not setting means I have to set it. उसके दिमाग में बात आएगा। फिर उसके बाद वो बोलेगा, वो दूसरों के बारे में बोल रहा है, फिर आप उसको उसके बारे में पूछोगे कि आपने भी गोल सेट किया तो आपके क्यों अचीव नहीं होता है। तो सब लोग बोलते हैं मैडम मैं लिखता बहुत हूँ बट मेरा क्लैरिटी नहीं रहता कि कौन सा काम फर्स्ट करूँ सेकंड करूँ, या फिर मुझे डर लगता है कि मैं लिखूंगा तो ये काम मेरा होगा नहीं। प्रोकास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मेरे फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, मैं चला गया, मम्मी के साथ मुझे बाहर जाना चला, तो ये क्या डिस्ट्रैक्शंस है। तो इन दिस वे वी आर हेल्पिंग देम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पर्सनल स्ट्रगल आफ्टर सेटिंग द गोल्स। उसके बाद हम बच्चों को इनसाइट बता सकते हैं कि कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर पॉइंट शुड बी लाइक आइडेंटिफाइंग देम व्हाट आर द बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स in achieving the goal. And if they're not having the goal, they will come up with the goals and they will try to find out. Now, second is like you will be helping them to have the procrastination awareness. Abhi, for example, I wanted to complete the science subject tomorrow yesterday, but I could not. So in this way, you are trying to make him understand क्या हुआ था कल, क्यों नहीं करे आप। तो प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल कैसे हुआ था वो आप समझाओगे बच्चे को। बेटा आपने बोला कि 5 o'clock तक आपका साइंस का खत्म होना चाहिए बट वो 7 o'clock को हुआ, फर्स्ट सिनेरियो। या सेकंड सिनेरियो, बिल्कुल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। अब बैक ट्रेसिंग कराओगे आप, 5 o'clock को बोले थे ना तो आप 4 o'clock क्या कर रहे थे, 3 o'clock क्या कर रहे थे। तो बोलेगा कुछ लंच के बाद मैं सो गया, लंच के बाद में मूवी देख रहा था क्योंकि फैमिली देख रहा था। तो आप उसको क्या बोलना, वो देख रहा था तो आपका अपना अपना गोल याद होना चाहिए ना। दैट इज हुज प्रॉब्लम। ऐसा, ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या बोलेगा, मैम मुझे याद था 5 o'clock को करना था पर मैं भूल गया। तो क्यों भूल गए, बिकॉज यू हैव नॉट रिटन योर गोल, यू हैव टू राइट, यू हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ। तो इन दिस वे यू आर हेल्पिंग योर टीनेजर टू अंडरस्टैंड कि प्रोकास्टिनेशन का साइकिल क्या है। अवेयरनेस, आप उसको अवेयरनेस करा रहे हो बाय रिविजिटिंग हिज पास्ट, क्यों नहीं हुआ करके। तो ये भी करना है आपको। ना उसके बाद आपको बताना है कि यू हैव टू क्रिएट ए डेली आवर प्लान। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग टर्म भी गोल बनाओ बेटा कि मुझे दिन में 3 एक्टिविटीज करना ही करना है। आइडेंटिफाई देम टू कि डेली मुझे 3 एक्टिविटीज कुछ करना ही करना है विदाउट एनी, एंड दिस यू हैव टू रिपीट फॉर 7 days, ऐसे करो। फिर उसके बाद उसके बाद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट यू प्लान टू हैव द पावर आवर ईच डे वेयर यू कैन फोकस ओनली ऑन दोस टास्क। नहीं मैडम मैं करता हूँ प्रैक्टिस, मैं सोचता हूँ कि मैं डेली ये 3 काम करूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू टेक बाथ डेली, then I have to study the tough subject daily, then I think I have to restrict my digital addiction daily। ये 3 मेरे से हो नहीं रहा है मैडम। then वो लोग तो आपको बोल, you have given him lot of suggestions but still he is not able to do, then you have to tell him bring all the things into 1 hour, that 1 hour will the power hour for you, nobody is going to disturb and no other things you are going to do that in that 3 hours only, you are going to, in that 1 hour only you are going to tackle the 3 important things। so in this way you have to split। ये सब आइडिया आपके पास रहना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट से हम उनको सिखा रहे हैं कि बड़ी चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं। सो इन दिस काउंसलिंग यू कैन डू लाइक दिस। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, हेल्पिंग देम टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स इन गोल सेटिंग्स, देन प्रोक्रास्टिनेशन अवेयरनेस एक्सरसाइज कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उसको ब्रेक करना सिखाना है। उसके बाद बच्चे को बताना है कि 3 रूल्स, 3 टास्क डेली करो, अगर 3 नहीं हो रहा है तो वो तीनों टास्क को एक ही घंटे में करो। इन दिस वे यू कैन हेल्प देम इन काउंसलिंग। काउंसलिंग से आप बच्चों को समझा सकते हो। Next, when you are coming to the parent consultation, helping teens develop discipline and structure, that is a parents का रोल है इसमें। तो पेरेंट्स के माइंडसेट पे पहले काम करना है, पेरेंट्स को अंडरस्टैंड कराना है कि गोल सेटिंग माइंडसेट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हैबिट क्या होता है। एंड मेनी पेरेंट्स स्ट्रगल बिकॉज दे जस्ट वांट टू एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द टीनेजर्स कि ये करो वो करो ये करो वो करो। बट पेरेंट्स को बताना है कि वी हैव टू फर्स्ट बैलेंस बनाना है एंड सेल्फ मोटिवेशन। बच्चों को हमें सिखाना है कि वो लोग खुद कर सके, जैसे आप अभी काम कर रहे हो एज ए काउंसलर, पेरेंट को भी करना है। तो पेरेंट शुड नो हाउ टू एनकरेज द चिल्ड्रन टू हैव द बैलेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड हैव द बैलेंस ऑफ बिटवीन सपोर्ट एंड प्रेशर। बच्चे वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमेशा हमको, माय पेरेंट डज नॉट लिसन व्हेन आई टेल हिम देम टू प्लान देयर टाइम। सो इन दिस प्रोसेस द मेन की क्या है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो रहा है। 1 second, 1 second. My maid is ringing the bell. 1 second, I'll go and Okay. come. Okay. Okay.
Yeah. So in the counseling, our main target would be like teaching parents to encourage self motivation to the children. हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यूजुअली कंप्लेन क्या होता है, मैं टीन इज नॉट लिसनिंग टू मी व्हेन आई एम ट्राइंग टू टेल देम कि फॉलो दिस टाइम टेबल एंड कंप्लीट द थिंग्स. यहाँ पे मैम क्या हो रहा है, द पेरेंट इज डिक्टेटिंग, कमांडिंग, बट रादर देन दैट हमें क्या करना है कि बच्चों के साथ मिलके करेंगे तो बच्चे काम करते हैं. बच्चे कितने भी टीनेजर्स हो जाए, बड़े हो जाए, बट दे स्टिल नीड पेरेंट्स. ये पेरेंट्स को समझना है पहले कि हमें बच्चों को ऐसा ऑर्डर नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ दैट यू मस्ट ऐसे बोलना है, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग. एंड वी कैन आस्क देम हाउ आर यू प्लानिंग टू फिट योर स्टडीज एंड प्ले टाइम इनटू द शेड्यूल टुडे. ऐसी बातें करनी है, रादर देन कि तुम ये खत्म कर दो, ये कर, ऐसा नहीं करना है. कामली कैसे प्लान कर रहे हो, आपको प्ले टाइम भी करना है, स्टडीज भी करना है, या फिर हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे क्या, ऐसे मतलब असर्टिव वे में पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि वी हैव टू मेंटेन. हमेशा प्रेशर मत डालो, बच्चों को सपोर्ट करो. प्रेशर भी डाल रहे हो कि आप प्रेशर डाल रहे हो कि खत्म कर दो, बट सपोर्ट नहीं कर रहे हो. चिल्ड्रन नीड सपोर्ट ऑलवेज फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर देम. सो पेरेंट्स को सपोर्ट करने आना चाहिए रादर देन प्रेशराइजिंग. एंड ऐसा करेंगे ना तो बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, और ये मेरा काम है, मुझे करना है करके. इसलिए तो वी हैव टू टॉक टू द पेरेंट लाइक दिस. देन वी शुड टेल द पेरेंट्स लाइक always try to praise the effort, not the achievements. उससे क्या होगा, अचीवमेंट से क्या होता है, बच्चे क्या घमंड करने लगते हैं. they will not sustain that. Rather than that we have to praise the efforts whatever. जनरली जब पेरेंट्स बच्चों को रिजल्ट के बारे में प्रेस करते हैं ना कि यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो उनको प्रेशर आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम होगा नहीं होगा करके. इंस्टेड ऑफ दैट वी नीड टू एक्नॉलेज, बेटा आपने उतना पढ़ाई किया था उस दिन रात को जाग के, तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, कितना रात जागे थे ना आप. रादर देन सेइंग कि तुम फर्स्ट आए, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो. तो उससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि हाँ मम्मा पापा को मेरे ये ध्यान दे रहे, तो दे विल ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड दे विल स्टिल कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड. So instead of said like parents say great you got a position, instead of that we should say I saw how you plan your study time at that time and देखो आज उसका फल मिला आपको. ऐसे बात करना है कि rather than you got first rank, no it's good, ऐसा नहीं, उस समय आपने इतना मेहनत किया तो आज उसका फल ये मिला. तो इससे हम बच्चों की मेहनत उनको याद दिला रहे हैं, एफर्ट्स याद दिला रहे हैं, तो दे विल फील वेरी गुड. So self motivated रहेंगे. Now we should also help parents to guide teenagers through time management. Parent teen time mapping, because they have to have the joint schedule together, otherwise very difficult हो जाता है. क्योंकि बच्चे क्या है, माँ बाप से ही सीखते हैं ना. अगर वो लोग कुछ वीकली भी टास्क मिलके करेंगे, प्लांटिंग कर रहे हो घर में, कुकिंग कर रहे हो, साथ में मिलके करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट स्किलफुल बनते हैं. तो पेरेंट शुड हैव एटलीस्ट पेरेंट टीम का कुछ एक्टिविटीज एट होम वीकली, तो भी तो इससे क्या है, उनको मोटिवेशन मिलता है टाइम मैनेजमेंट के लिए. रादर देन प्रोडकास्टिनेटिंग, रादर देन गोइंग फॉर डिस्ट्रैक्शंस, दे विल ट्राई टू यूज द टाइम इन अ प्रॉपर वे. So this you have to tell. And whenever they say my teen is always distracted by their phone, then you have to tell like you have to have some digital detox hours for yourself also. You try to not use the phone in front of them when you are sitting with dining table with them, when you are sleeping. जब आप अपना फोन खुद दूर रखोगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, अपना टीवी, अपना मोबाइल, अपना पैड दूर रखेंगे. if you are doing, they're following you also. So try to have the digital detox hours in life also. And parents always say like my teen is always rushing in the last minute. At that time we have to teach the parents first ki why don't you use the reminders for your children. Checklist banao, reminder banao, planning karo, unko help karo. We have to help them, support them, not complain mat karo, support karo, समझाओ कि कैसे बच्चों को इस सिचुएशन से हमें बाहर निकालना है. Okay? So the main thing is like of this topic is like we have to make them understand what are the goals, what are realistic goal, how to manage the time effectively, and what will happen if they procrastinate and how to overcome it. And also we are going to tell the parents like what to do with the teenagers when they are coming with the problems of procrastination and goal setting, and don't do the micromanaging. Instead of that, support them and try to use some apps to log the times what they are doing. Notepads है, logs है, कुछ भी है, but friendly way में बच्चों को करना है. So that is the topic for the goal settings. This one, the first today's topic. Now I'll take one more topic. My maid has come today, starting off 1 hour class went. No, tomorrow. Thursday, tomorrow, today afternoon, are you free? After 1:30, I'm free. You're not going anywhere today? No?
You're not going for the schools? Today, no, I completed everything. Oh, you are at home only up to 2 o'clock? I'm free today. Means you're not going to the tuitions also? That will be from 5:30. Okay. If at all I Mm. have a time, Nama, I'll ping you back at 1:30 or 2 o'clock. Yeah, because we can continue today. I'm totally free. Okay. I'll Mm. plan. Before Oh. my elder comes, I'll plan it out. Okay. Yeah. If- You give a one missed call, because in kitchen, no, I won't be seeing the messages. That's why. Okay. Because I'm planning to cover 2 more topics so that it will be a good thing for me. Okay. Okay. Okay, ma'am. After 1 o'clock also, I'm free. If you can do by 1 also. Because now she has come, no, she'll go early. So I can come back to my room. Exactly. Let me see my timetable also. Okay, ma'am. Thank you. Just Bye-bye. give a missed call. I may miss the message. That's why. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye.